पेज नंबर 57 of the government textbook. Okay, so definition दिया है, right? Time series is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals over a specific period of time. पढ़ा तुम लोग ने? Okay, ठीक है. So वो स्टेटमेंट को मार्क करो. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हम लोग ने देखा ना, ईयर और प्रोडक्शन, वो भी सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस था ना. रेगुलर टाइम इंटरवल्स, ऐसा नहीं कि यू नो दो दो ईयर्स के बीच में का गैप 1 साल 2 साल 3 साल, पहले 2 ईयर्स का गैप 1 साल, बाद में के 2 ईयर्स का गैप 3 साल, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स का गैप 5 साल, ऐसा नहीं रहता है. रेगुलर टाइम इंटरवल्स रहता है कि नहीं? ओके, ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन. फर्स्ट लाइन, डेटा कलेक्टेड आर्बिट्ररीली. आर्बिट्ररीली का मतलब है रैंडमली. रैंडम डेटा कलेक्शन कभी होता नहीं है. डेटा कलेक्शन हमेशा सिस्टमैटिक वे में होता है. और इरेगुलरली डज नॉट फॉर्म अ टाइम सीरीज. मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो टाइम सीरीज इन्वॉल्व्स use of statistical methods to analyze time series data in order to extract meaningful statistics and understand important characteristics of the observed data. That is okay. Regression or time series, both are used for prediction, estimation. Time series helps us understand the underlying forces leading to a particular pattern in the time series. Pattern पता चलता है. Helps us in monitoring and forecasting. Forecasting मतलब finding out data with the help of appropriate statistical models. One of the statistical model is what? Method of least squares. Analysis of time series data requires maintaining records of values of the variable over time. ठीक है. वो एग्जांपल्स तुम लोग पढ़ लो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस. The main objective of time series analysis is to understand, interpret, and assess chronological changes in values of a variable in the past, so that reliable predictions can be made about the future. मार्क करो. ठीक है. आगे का नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. अभी पॉइंट नंबर 1 में जाओ, नेक्स्ट पेज पे. It is useful for studying the past behavior of a variable. It is useful for forecasting. मार्क करो, पॉइंट नंबर 1 मार्क करो. It is useful for forecasting मतलब predicting future behavior of a variable. It is useful in evaluating the performance. पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? And the fourth point, it is useful in making comparative study. अंदर पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा. यस, मार्क ऑल 4. पैराग्राफ तुम लोग को नॉलेज के लिए पढ़ने के तो पढ़ सकते हो. Components of a time series. The graphical representation of time series
shows continuous changes in its values over time, giving an impression of fluctuating nature of data. ये तो पढ़ के आपको समझ में आ रहेगी नहीं. फर्स्ट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज शोज कंटिन्यूअस चेंजेस. डेटा चेंज हो रहा है ना, डेटा चेंज हो रहा है मतलब क्या, डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है. A close look of the graph, however, reveals that the fluctuations are not totally arbitrary. ओके okay? ये जो फ्लक्चुएशंस होता है डेटा में, डेटा जो चेंज होता है वो रैंडम नहीं होता है. ओके okay? And a part of this fluctuations has a steady behavior and can be related to time. This part of the systematic part, this part is the systematic part of time series, and the remaining part is non-systematic part or irregular part of the time series. ओके okay? तो टाइम सीरीज का दो पार्ट्स रहता है, ग्राफ का दो पार्ट रहता है, सिस्टमैटिक पार्ट एंड नॉन सिस्टमैटिक पार्ट. The systematic part is divided in the following categories. Three categories. Systematic part is divided into three categories: secular trend, seasonal variations, cyclical variation. Secular trend is denoted by T, seasonal by S, and cyclical by C. This is the systematic part of the time series. The non-systematic part of the time series is called as irregular variation, that is I. Irregular variation, that is I. ये मालूम रहना चाहिए आपको, TSCI पता रहना चाहिए. Every time series has some or all of these components. ग्राफ, टाइम सीरीज का जो ग्राफ रहता है, it can have all of these components या फिर some of these components. Of course, the systematic components of time series are useful in forecasting its future values. Last line बहुत important है. जब भी कोई भी चीज हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं तभी सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज आर मोर यूजफुल. प्लीज मार्क इट. तो ये कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये पैराग्राफ पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था. Is it okay? Yes. Secular trend. The secular trend is the long-term pattern of a time series. The secular trend can be positive or negative depending on the time series, on whether the time series exhibits an increasing long-term pattern or decreasing long-term pattern. Long-term increment, long-term decrease. The secular trend shows a smooth and regular long-term movement of the time series. The secular trend does not include short-term fluctuations. ये पढ़ लो, ये theory point बहुत important है, MCQ में आ सकता है. Secular trend does not include short-term fluctuations, but only consists of a steady movement over a long period of time. हम लोग ने उस दिन एक ग्राफ बनाया था. ओके, ऐसा कुछ तो था, राइट? ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है. ओके, तो इसको सेकुलर ट्रेंड ज्यादा कंसिडर नहीं करता है. सेकुलर ट्रेंड क्या करेगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा. समझा कि नहीं? ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को फॉलो नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक का वैल्यू 9 AM और 10 AM के बीच में उसका ग्राफ ऐसा है.
कोई भी एक पर्टिकुलर डे पे कोई भी स्टॉक का ग्राफ ऐसा है, सो विल यू कंसिडर दिस? नो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, दिस इज नॉट अ सेक्युलर ट्रेंड। ओके, और इसमें ट्रेंड लाइन बनेगा भी नहीं, बनाया तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। देन the secular trend shows a smooth and regular long term movement of the time series. The secular trend does not include short term fluctuations but only considers a steady movement over a long period of time. It is the movement that this time series would take if there are no seasonal, cyclical, or irregular variations. Okay, अपना प्रॉब्लम्स मोस्टली तो सेकुलर ट्रेंड की तरफ ही था, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू जनरलाइज. It is the effect of factors that are more or less constant for a long time or that change very gradually and slowly over time. नेक्स्ट लाइन थियोरेटिकल पॉइंटर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ अ टाइम सीरीज डज नॉट शो एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न देन द सीरीज इज स्टेशनरी अराउंड द मीन. मार्क करो, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ट्रेंड लाइन ऐसा बना या फिर ऐसा बना पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा अगर बना ट्रेंड लाइन, सो इट्स अ कांस्टेंट पैटर्न. वो इंक्रीजिंग पैटर्न भी नहीं है, डिक्रीजिंग पैटर्न भी नहीं, इट्स अ कांस्टेंट पैटर्न. सो दिस कांस्टेंट पैटर्न इज स्टेशनरी अराउंड द मीन. ओके, फिर आप लोग वो दोनों ग्राफ्स देख लेना, अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, सीजनल वेरिएशन मिला कि नहीं आप लोग को? Many time series related to financial, economic, and business activities consist of monthly or quarterly data. Okay. It is observed very often that this time series exhibits seasonal variation in the sense that similar patterns are repeated from year to year. Seasonal variation is the component of a time series that involves patterns of a change within a year and that repeat from year to year. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज है, एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस वी कैन से, उसका 2 ईयर का ग्राफ, उसका 2 ईयर का ग्राफ सेम रहेगा. ये स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा लेकिन सेम पैटर्न फॉलो कर सकता है. जैन और दिसंबर, सो समवेयर आफ्टर द मिडल ऑफ द ईयर वी कैन सी अ स्टीप फॉल, वी कैन सी अ स्टीप फॉल, राइट. अगर ये 2019 का ग्राफ है और ये 2020 का ग्राफ है, कोई तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दोनों का ग्राफ मैंने आपको बता दिया. So somewhere in the middle of the year, somewhere in the middle of the year, we can see a steep fall and again a rise, again a rise. तुम लोग को दिख रहा है क्या ग्राफ के हिसाब से? Okay, I am taking an example. I am not naming the product. मैं just एक random example ले रहा हूँ. Okay, तो कोई कोई प्रोडक्ट्स ऐसा रहता है, कोई कोई सर्विस ऐसा रहता है कि हर साल यही ग्राफ फॉलो करेगा.
सो दिस इज अ सीजनल वेरिएशन, ये सीजनल वेरिएशन है कि हर साल सेम पैटर्न फॉलो करेगा। फ्लक्चुएशन हर एक चीज में होता है, ऐसा नहीं कि सीजनल में होता है, लेकिन ग्राफ का पैटर्न देखो। ठीक है, several commodities show seasonal fluctuations in their demand. Warm clothes and woolen products have a market during the winter season. Fans, coolers, cold drinks, अभी देखो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है दोनों, ये देखो, ये किधर तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का पीरियड है, ये वाला पीरियड। डू यू अग्री विथ मी? ये वाला जो पीरियड है, तो इसमें डोंट यू फील ये जो फैंस है, कूलर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, रेनी सीजन मोस्टली, तो उसमें थोड़ा सा डाउन हो सकता है। रेनी सीजन में आई बिलीव बहुत जन के घर पे ही बोलते रहेंगे, अरे बहुत बारिश गिर रहा है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, बारिश गिरेगा तो गर्मी शुरू होता है, गर्मी खत्म हो गया तो बारिश शुरू होता है। तो ऐसे मौसम में तुम लोग ये सब चीज अवॉइड करो, तबियत खराब हो सकता है। बोला है कि नहीं तुम लोगों को घर पे? ठीक है, सो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम्स, इसका सेल थोड़ा सा कम होता है ये टाइम पे, राइट? ओके, बाकी का सब एग्जांपल्स तुम लोग पढ़ लो उसमें से। ठीक है, सीजनल वेरिएशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सीजनल इंडाइसेस। मैं सीधा आगे चला गया पेज नंबर 60 पे। देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सीजनल इंडाइसेस। उसके हिसाब से सीजनल वेरिएशन मेजर होता है। सब कुछ चीज में ज्यादा डिटेल में बोलने वाला नहीं हूं, प्लीज। साइक्लिकल वेरिएशन, cyclical variation is a long term oscillatory movement in the values of a time series. Cyclical variation occurs over long period, usually several years. If seasonal variation occurs within a year, okay, one complete round of oscillation is called as a cycle. Just read that paragraph once, पढ़ लो एक बार। आप लोग ने बिजनेस साइकिल सुना है क्या कभी इकोनॉमिक्स का लेक्चर में? सो इट्स अ साइक्लिकल वेरिएशन, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रह सकता है। ओके, so see on the next page they have given cyclical variations are observed in almost all time series related to economic or business cycles. ठीक है, कभी कभी साइक्लिकल वेरिएशन का पीरियड 5 साल रह सकता है, 10 साल रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वी डोंट नो अबाउट इट। वो होने के बाद ही पता चलता है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद। cyclical variation may be attributed to internal organizational factors such as purchase, inventory policies, or external factors such as financial market conditions and government policies.
ओके, ये पैराग्राफ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। ये लास्ट वाला फ्यू लाइंस, चलो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ with respect to last few lines. I'll make an attempt. I'm not very sure, कि आप लोग कन्विंस होगे कि नहीं, but then I'll make an attempt. When we speak about cars, okay, तो कार बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टील। ओके, सो व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग अ कार, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्टील। अभी स्टील में अगर रिसेशन है, स्टील का जो रॉ मटेरियल स्टील एज रॉ मटेरियल अगर उसमें कुछ रिसेशन है, तो फिर कार का भी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी रिसेशन आने का चांस रहता है। सो दिस इज एन इंटरनल फैक्टर। स्टील का भाव अगर बहुत बढ़ गया है, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के टाइम पे ऑटोमोबाइल कंपनी सोच समझ के परचेस करेगी। इफ दे गो ऑन परचेसिंग, इफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ स्टील इज लेस इन द मार्केट, तो उनको हाई प्राइस में मिल सकता है। और अगर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ओके, अभी एक्सटर्नल फैक्टर, financial market conditions and government policies. As far as my knowledge is concerned, there are two important things: monetary policy and fiscal policy. सुना है क्या तुम लोग ने? मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाते हैं? आरबीआई बनाता है। मॉनिटरी पॉलिसी है ना, आरबीआई बनाते हैं, आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिनेंस मिनिस्टर। तो देखो, आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो जो लोग लोन के ऊपर कार खरीदते हैं, उनको डिफिकल्ट जाएगा परचेस करने के लिए, है कि नहीं? या फिर मार्केट में रिसेशन आ गया, लोगों का जॉब जा रहा है, ओके, तो तभी भी कार कार्स का जो सेल्स रहेगा वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत डाउन हो सकता है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, राइट? ये तो मैंने आरबीआई का बता दिया। अभी गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, जब भी जीएसटी पहला बार इंट्रोड्यूस हो गया था मार्केट में, तभी तभी वो रेट्स भी काफी हाई थे, तुम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा। तो तभी सर्टन था कि ऑटोमोबाइल्स परचेस करने में डिफिकल्टी होने ही वाला है। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशन आने वाला है, ये जो साइक्लिकल वेरिएशन आने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, डोंट यू फील इट इज रिलेटेड टू इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो? इंटरनल फैक्टर्स मतलब रॉ मटेरियल, रिसोर्सेस। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट सिनेरियो, गवर्नमेंट।
ठीक है, अभी पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ते ही जा रहा है। 2-3 साल पहले 80 रुपीज था, आज कितना है? 110। तो ऐसे टाइम पे पीपल विल अवॉइड परचेसिंग कार्स, दे विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं ठीक है, लेकिन डू यू रियली फील कि 100% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे आर यू नो rich enough to purchase a car? No. Lower middle class, poor people, पुअर पीपल का तो जाने दो, लेकिन लोअर मिडिल क्लास पीपल विल ऑल्सो अवॉइड। ओके, irregular variation, coronavirus, the underlying market scenario due to coronavirus, it's an irregular variation, war, famine, earthquake। ओके, तो ये टाइम सीरीज में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स, कोई भी इंडेक्स, ये सब चीजों का अगर टाइम सीरीज बनाने गए, ये कोई भी चीजों का अगर हम लोग ग्राफ बनाने गए, तो एक अजीब पैटर्न दिखेगा, एक अनसर्टनिटी वाला पैटर्न दिखेगा, एंड दैट अनसर्टनिटी वाला पैटर्न इज ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशंस, राइट? हर साल जो आपको एक पैटर्न दिखता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का, वो आपको वो पर्टिकुलर ईयर में दिखेगा नहीं, वो पर्टिकुलर ईयर में दिखेगा नहीं। तभी आपको पता चलेगा कि ये ईयर में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका ग्राफ अलग है। डू यू अग्री विथ मी? इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, बट देन अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स सिखाने को आता नहीं है। दैट इज व्हाट आई कैन से। Somehow in bits and pieces I'm trying to explain you। सो आई होप आपको थोड़ा सा तो किधर तो लिंक बैठ रहा है। Irregular variations are unexpected variations in time series caused by unforeseen events। ये जो इवेंट्स रहते हैं, ये जो कोरोना वायरस का टाइम है, वॉर्स है, फेमाइन है, अर्थक्वेक्स है, वी डोंट नो इट इज गोइंग टू हैपन। और वो जब भी आता है तो सब धमाका करके जाता है कि नहीं? अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर, hence irregular variation are also known as unexplained or unaccounted variations। लास्ट लाइन देखो, पढ़ो बराबर से। mathematical model of the time series, let x denote the value of the variable at a time t। the time series is denoted by the collection of values t is equal to 0 1 2 dot 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 xt comma t is equal, ये देखो t मतलब ईयर, और xt कुछ भी रह सकता है ना, जो डेटा में प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू प्रोडक्शन इंडेक्स कुछ भी रह सकता है। ओके, कुछ भी रह सकता है वो। There are two standard mathematical models for time series based on four components।
ये सिर्फ बाय करके जाओ, इसके अंदर घुसना नहीं प्लीज। जितना चाहिए उतना एक्सट्रैक्ट करने का। सी दिस इज लाइक अ मैंगो। मैंगो के अंदर एक सीड रहता है, मालूम है? सीड। और सीड के ऊपर वो पल्प रहता है, फ्रूट रहता है, राइट? सो यू हैव टू ईट द फ्रूट और सीड को फेंक देने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीड अनइम्पोर्टेंट है, सीड की वजह से ही तो प्लांट आता है। लेकिन अपने को चाहिए क्या? वो ऊपर का फ्रूट चाहिए, राइट? सो ज्यादा इसके अंदर जाओ मत प्लीज। ओके, जितना मार्किंग्स करवा रहा हूं उतना देखो। The additive model assumes that the value xt at time t is the sum of the four components। तो एडिटिव मॉडल में ना सबका एडिशन रहता है। टी मतलब क्या? टी नहीं नहीं नहीं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल एस, कैपिटल सी, कैपिटल आई। आई मतलब इरेगुलर, टी मतलब सेकुलर ट्रेंड, एस मतलब सीजनल, सी मतलब साइक्लिकल। समझा क्या? टी एस सी आई का मतलब समझा क्या तुम लोगों को? ओके, द एडिटिव मॉडल assumes that the four components of the time series are independent of one another। वो मार्क करो, कुछ भी करके मार्क करो। चलो, जियोन इससे क्या पता चलता है? वो एक ही चीज बोलता है, ये जो सेकुलर ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशंस है, साइक्लिकल वेरिएशंस है, इरेगुलर वेरिएशंस है, दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, तभी एडिटिव मॉडल यूज करने का। ओके, अभी मेरे को एक बात बोलो, कोई भी इकोनॉमी में बहुत सारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रहता है। ऐसा हो सकता है क्या कि सेकुलर ट्रेंड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द साइक्लिकल वेरिएशंस, या फिर इरेगुलर वेरिएशन, या फिर सीजनल वेरिएशन? ऐसा हो सकता है क्या रियल लाइफ में? नहीं हो सकता है। सबका इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के साथ रहता ही है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आई शुड से। हैव यू हर्ड ऑफ सरोगेट डिमांड? तो जाने दो। सो एडिटिव मॉडल, इसमें ऑल द फोर कंपोनेंट्स सेक्युलर, साइक्लिकल, seasonal and irregular, they are independent of one another। It is also important to remember that all four components in the additive model must be measured in the same unit of measurement। यूनिट भी सेम रहना चाहिए। The magnitude of the seasonal variation does not depend on the value of the time series in the additive model। इसका मतलब तो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता है। In other words, the magnitude of seasonal variation does not change the as the series goes up or down। आप उतना ही याद रखो, the magnitude of seasonal variation does not depend on the value of the time series in the additive model। उतना आप याद रखो। Maybe I am not the right person to guide you on this। And definitely you can understand my situation। मैं तो एक बेचारा मैथ्स का टीचर हूँ। The assumption of independence of the components is not often realistic। मतलब मैंने बोला ना आपको कि ये जो चार कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज का, ऐसा होगा ही नहीं कि ये लोग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। थोड़ा एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी होगा ही। सो वेन एवर द फोर कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तभी
एडिटिव मॉडल आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आएगा? एडिटिव मॉडल आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आएगा? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आएगा व्हेन दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये वाला रियलिस्टिक रहता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, हाँ, ऑल ऑफ देम करेक्ट। Multiplicative model is more realistic. They have given over there. Values of the trend are expressed in units of measurements, and other components are expressed as percentage or relative values, and hence are free from units of measurement. Additive में units of measurement रहता है, same unit of measurement रहना चाहिए, और multiplicative में कुछ unit कुछ नहीं, not dependent on the units of measurement. उसका next paragraph बहुत important है theory के लिए. It is recommended to choose the multiplicative model when the magnitude of the seasonal variation in the data depends on the magnitude of the data. Theory के लिए बाहर करके जाओ. I really don't have any answer for this. I'm really sorry for that. वो मिला क्या तुम लोगों को? लाइन मिला? It is recommended to choose the multiplicative model when the magnitude of the seasonal variation in the data depends on the magnitude of the data. In other words, the magnitude of the seasonal variation increases as the data value increase, and decrease as the value of the data value decreases. समझा क्या? समझा क्या? Again, this is a very wrong question. I should not ask this. लेकिन तुम लोग मार्क करके लो. And there will be many questions in your mind with respect to the theory, but then मेरा knowledge ये सब चीजों में काफी limited है. ठीक है? चलो फिर जाते हैं हम लोग आगे. Let's go to miscellaneous exercise 4 MCQs. I hope you people are not getting offended by my comments, क्योंकि जितना ऑनेस्ट मैं आपके साथ रहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है. Miscellaneous exercise 4. Choose the correct alternative. ठीक है? Which of the following can't be a component of the time series? Which of the following cannot be a component of the time series? Mean. The first step in time series analysis is to plot the data on the graph. Plot the data on the graph. Time series analysis is based on the assumption that past patterns in the variable to be forecast will continue unchanged into the future. बाय करना पड़ेगा ये. Okay. Moving averages are useful in identifying trend component. Again by heart. That's it. ओसी इको में जैसा बहुत सारा चीज कभी कभी सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन तुम लोग बाय करते हो कि नहीं? बी वेरी फ्रैंक. ओके. ठीक है. ये सेकंड वाले का आंसर था प्लॉट द डेटा ऑन द ग्राफ, और थर्ड वाले का आंसर था टाइम सीरीज एनालिसिस बेस्ड ऑन द assumption that past patterns in the variable to be forecast will continue unchanged into the future.
Okay, we can use regression line for past data to forecast future data. We then use the line which is minimizing the sum of the squares of the deviations of past data from the line. Minimizes the sum of the deviations of the past data from the line. अभी इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है. ये फिफ्थ प्रॉब्लम के पीछे आई शुड से देयर इज एंटायर मैथमेटिक्स. रिग्रेशन लाइन जो बनता है, रिग्रेशन लाइन वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से बनता है. इसमें थोड़ा डेप्थ में है. आई कैनॉट रियली गो इनटू दैट लेवल ऑफ डेप्थ विद यू गाइस. फिफ्थ का आंसर ए है. ए मिनिमाइजेस, मैक्सिमाइजेस नहीं, मिनिमाइजेस. फोर्थ का सी है. Which of the following is a major problem for forecasting, especially when using the method of least squares? The future may not follow the same patterns of the past. Forecast या फिर prediction ये तो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए रहता है, लेकिन आगे जाके अगर कोई भी चीज का ग्राफ चेंज होने वाला रहेगा, so we cannot really follow the same pattern of the past. The future may not follow the same pattern of the past. The overall upward or downward trend in annual time series would be contained in which component of the time series? अभी ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा था ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड. ओके, आंसर इज ट्रेंड. आंसर इज ट्रेंड. एक्चुअली वो सेक्युलर ट्रेंड रहना चाहिए था. सेक्युलर ट्रेंड उन लोगों ने सिर्फ ट्रेंड दिया है. सेक्युलर ट्रेंड रहना चाहिए था, उन लोगों ने सिर्फ ट्रेंड दिया है. ओके, the following trend line equation was developed for annual sales from 1984 to 1990 with 1984 as the base year. Okay, y1 is equal to 500 plus 60x in rupees 1000. The estimated sales for 1984 in 1000. ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का प्रॉब्लम है. ठीक है, कैसे आया 500? कैसे आया 500? some students are replying with 500. Please explain. बेस ईयर के लिए x का वैल्यू तो 0 रहेगा ना, है कि नहीं? बेस ईयर के लिए see I'll tell you, y is equal to what is x? बराबर है कि नहीं? yes or no? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अगर आपको समझ में आया है तो फिर आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू मैंने t माइनस 1984 कैसे लिया. x is t माइनस 1984 और 84 को उन लोग ने बेस ईयर लिए. सो नाउ फॉर t इज इक्वल टू 1984, तो t के जगह पे 1984 डाल दो, आंसर मिल जाएगा 500. समझा कि नहीं? व्हाट इज द सानिया, आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कभी कभी. बेस ईयर 1984 बोला है उन लोग ने प्रॉब्लम में. सो x का वैल्यू t माइनस 1984 एंड दे आर आस्किंग
द कैलकुलेशन फॉर द बेस ईयर इटसेल्फ, 1984 का ही कैलकुलेशन पूछ रहे, तो टी की जगह पे 1984 डाल देने का. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अ ट्रेंड लाइन? इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है. Which component of the time series refers to erratic time series movements that follow no recognizable or regular pattern? Irregular. ठीक है. शायद से पीछे आंसर कुछ गलत अलग दिए उन लोग ने. एथ का आंसर ए है, देखो ना कैलकुलेशन मैंने बताया. 9 का आंसर बी है. 10th का आंसर मेरे हिसाब से डी रहना चाहिए, इरेगुलर. व्हाट दे हैव गिवन इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट ने थोड़ा बोला था कि ये गलत है करके. ओके, तो ये थोड़ा सा एंड में मैं आपको बोल दूंगा. लास्ट ईयर सिंस देयर वाज नो एग्जाम, तो मैंने कंफर्म भी नहीं किया था किसी मॉडरेटर के साथ. आई विल कंफर्म इट लेटर. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. ये सब बाहर करने का, ये सब बाहर करने का. आई रियली कांट हेल्प यू मच इन दिस. फर्स्ट वन, which component of time series is indicated by a smooth line? Trend component. By heart, you have to by heart this. Which component of time series is indicated by periodic variation year after year? हर साल सेम ग्राफ आएगा year after year. So it's seasonal. Second वाला आंसर है seasonal. Which component of time series is indicated by a long wave spanning 2 or more years? Cyclical. Which component of time series is indicated by up and down movements without any pattern? Irregular. ये समझा 1 2 3 4? ठीक है. Question number 5. Additive models of time series assume independence. Answer is assume independence of its components. Multiplicative models of time series does not assume independence of its components. The simplest method of measuring trend of a time series is graphical method. 7th का आंसर है graphical method. The method of measuring trend of time series using only averages is called as moving average. 6th का आंसर है does not assume. 6th का आंसर है does not assume. 5th का आंसर है assume. ओके. सी गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा सा मैं फास्ट भी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत जन का एग्जाम भी है. ओके, सो प्लीज कोऑपरेट. हाँ, एंड द अदर रीजन इज व्हाई आई एम गोइंग फास्ट इज बिकॉज ये पर्टिकुलर फील्ड में एडवांस स्टैटिस्टिक्स आता है, एडवांस इकोनॉमिक्स आता है, तो मेरा थोड़ा सा नॉलेज उधर किधर कम गिर जाता है. ओके. if I directly tell you I am having 100% of the knowledge, then I am straight away lying to you. ऐसा किसी के साथ होता नहीं है. ओके. 7th वाले का आंसर था ग्राफिकल मेथड, 8th वाले का आंसर था मूविंग एवरेजेस.
The complicated but efficient method of measuring trend of a time series is least squares. Method of least squares. The graph of time series clearly shows trend of it is monotone. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ट्रेंड. 9 का आंसर है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. एंड माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस इज, ये चैप्टर का थियोरी में एकदम ज्यादा भी जाके डोंट डिग डीपर. ये लेवल पे इट इज नॉट वेरी यूजफुल. ट्रू और फॉल्स? 9 का आंसर है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. रियल लाइफ में देखो कैसा है कि व्हेन आई से, अगर आप लोग किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हो, इफ योर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, आप अगर हो जाते हो, या फिर आप सीए हो, ओके, सीए में भी आई शुड नॉट से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, इसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है. या फिर यू आर प्योरली इनटू स्टॉक मार्केट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यू आर नॉट गोइंग टू सिट एंड लर्न मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. सब मॉडलिंग करके है ना, सॉफ्टवेयर और ऐप में रहता है. आप लोग सिर्फ ग्राफ देखते हो. ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से. There is something which is called as technical analysis. When it comes to stock market, there are two things: fundamental analysis and technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस में यही पूरा रहता है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ग्राफ. वो ग्राफ अभी आपको सिर्फ एक पॉइंट प्लॉट करने का रहता है, ज्वाइन करने का रहता है, ट्रेंड लाइन मार्क करने का रहता है, ये लेवल पे. लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में जाते हो तो ग्राफ को कैसा एनालाइज करने का, वो आपको सीखने को मिलेगा. फंडामेंटल एनालिसिस इज टोटली बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट. पीएनएल स्टेटमेंट का मतलब पता है क्या तुम लोग को? पीएनएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके, फाइनेंशियल रेशियोज, मार्केट नॉलेज, ये सब पूरा फंडामेंटल एनालिसिस है. टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? पूरा मैथमेटिक्स होता है. यस निखिल, टाइम सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस. डेटा साइंस में होता क्या है कि एल्गोरिथम्स बनते हैं, मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल एल्गोरिथम्स बनते हैं, विच विल हेल्प यू डेवलप टाइम सीरीज. ग्राफ बनाने में काम आता है वो. देयर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड ऑल, वहां पे वो सब उसका कोडिंग होता है. ओके, चलो जाने दो ये सब. इट्स वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. ये सब के बारे में अगर जानने का रहेगा तो डेफिनेटली, यू नो, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम यू कैन कॉल मी अप एट योर ब्रांच, हम लोग बात कर सकते हैं. ठीक है, ओके. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. द सेक्युलर ट्रेंड component of time series represents irregular variations. First one, सेक्युलर ट्रेंड इरेगुलर वेरिएशंस किधर देता है? नहीं देता है ना. फॉल्स. सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर सेवरल years. ट्रू.
हर साल सेम पैटर्न फॉलो करेगा सीजनल वेरिएशन में। ओके, थर्ड वन, साइक्लिकल वेरिएशन कैन ऑकर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में किधर होता है साइक्लिकल वेरिएशन? 2-3 साल से ज्यादा लगता है ना, 5 ईयर, 10 ईयर। थर्ड वन इज फॉल्स। irregular variation is not a random component of time series. क्या है फोर्थ वाले का आंसर? फॉल्स है ना? ओके, स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था ना थियरी में, सिस्टमैटिक पार्ट और रैंडम पार्ट। सिस्टमैटिक पार्ट में कौन आता है? सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, है कि नहीं? ठीक है। एडिटिव मॉडल of a time series does not require the assumption of independence. False. ये बाइट करके जाने का, मैंने आपको जैसा बोला था वैसे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सिक्स्थ वाला तो ट्रू है। 7, ग्राफिकल मेथड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फॉल्स, आगे का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। मूविंग एवरेजेस मेथड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व सेवरल कैलकुलेशन। एथ वन, एथ वाले में क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम है मूविंग एवरेजेस का कैलकुलेशन, आप लोग ने देखा है ना? डिफिकल्ट है क्या वो? मूविंग 3 ईयरली मूविंग टोटल, फिर उसका एवरेज, 4 ईयरली मूविंग टोटल, उसका एवरेज। इजी है वो। लीस्ट स्क्वायर्स इज डिफिकल्ट, लेकिन उन लोगों ने बोला है सिंपल, तो नाइन्थ वाले का आंसर है फॉल्स। नाइन्थ वाले का आंसर है फॉल्स। All the three methods of measuring trend will always give the same results. एथ वाला ट्रू है, नाइन्थ वाला फॉल्स है, 10th वाला भी फॉल्स है। ओके, 10th वाला भी फॉल्स है। अलग अलग मेथड अपने को अलग अलग ट्रेंड बता सकता है। आपको स्टॉक मार्केट्स के एक्सपर्ट्स मालूम है जो न्यूज चैनल पे आते हैं? हर एक जन का अलग अलग प्रेडिक्शन हो सकता है कि नहीं? हर एक जन अलग अलग एल्गोरिदम फॉलो कर सकता है। दे कैन टेल यू डिफरेंट ट्रेंड्स based upon their experience, based upon their opinions, based upon what their mathematical calculations, algorithms, अलग अलग चीज बोल सकते हैं हम लोग। तो ट्रेंड हमेशा अलग मेथड का अलग ही रहता है। ओके, ट्रेंड इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स की x इज इक्वल टू y तो y इज इक्वल टू x, ऐसा नहीं रहता है ट्रेंड। इट इज बेस्ड ऑन डीप स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन हिज और हर पर्टिकुलर फील्ड। समझा कि नहीं? So this is all about the theoretical part of this chapter. Okay, we wind up time series at this particular point of time. Okay, so next lecture, let me tell you this thing also. Next lecture, I'll be taking up application of definite integrals. Again, I'll go to maths 1. वो एक चैप्टर खत्म करने का मुझे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, फाइन, so that's it. End of the lecture. Thank you. Bye.